Good morning, students. Waiting for one more minute to join, to let others join. Am I audible to you guys now? Please give me a confirmation कि आपको आवाज आ रही है. स्क्रीन मेरा विजिबल है. Please give me a confirmation. किसी को आवाज नहीं आ रही है मेरी? Please give me a confirmation that you guys can hear me and you can see the screen also. Yes, ma'am. Okay, thank you, Mohit. So yesterday we discussed investment decision, about investment, long term, short term, capital budgeting. We understood what is capital budgeting and working capital. So basically the decision between long term and short term decision is basically the capital budgeting and the working capital. यहाँ तक हमने cover कर लिया था. Now importance and difficulties we'll take today. Any investment decision which is taken, capital expenditure. I mean, here we will be discussing long term basically. Although if it can be applicable, the importance can remain same for short term also. But here we will be considering that we are studying the importance and difficulties for the short term, for the long term. Sorry, long term investments. So importance of investment decisions would include the following points. First is that it affects in the long run. Whatever decision we will be taking through any investment decision, wherein we will be investing in any of the long run project, which will be starting from 5 years to any number of years, can be up to 50 years also. So those basically projects are going to affect the organization in the financial terms or in the monetary terms in the long run. So whatever effect it would be, whether it is positive or negative, it will give us the impact and hamper or benefit the organization in the long term. जितने साल का प्रोजेक्ट होगा, अगर वो बेनिफिशियल होगा तो कंपनी को बेनिफिट भी उतने ही साल का होगा, और अगर वो लॉस होगा तो कंपनी को लॉन्ग रन में लॉस भी होने वाला है. सो इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, सो दैट वी कैन actually take the decision rationally
And there is some disturbance coming from somebody. Okay, I need to know. So the consequences of the capital expenditure decisions, जो भी हम capital expenditure long run के decisions, expense के decision ले रहे हैं किसी भी project में लगाने के लिए कुछ भी funds या finance of the company, वो हमको उसका consequence यानी result जो भी मिलेगा वो हमको long run में मिलने वाला है. From very first day we are not able to start earning. The scope of current manufacture activities of a company governed largely by the expenditure, capital expenditure in the past. जो भी हमने पुराने एक्टिविटीज की हुई हैं इन द रिसेंट पास्ट, उसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं. तो आज जो हम करने वाले हैं, जो डिसीजन हम आज लेने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट हम ऑब्वियसली फ्यूचर में देखेंगे. सो लाइक वाइज करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हम करने वाले हैं, जो भी डिसीजन आज लेंगे उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में. जो आज हम हैं, जो आज फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअल लाइफ पर भी एग्जांपल अगर लेकर देखें, so whatever decisions you have taken in the past, you are today, you are that today. जैसे कि अब आपने डिसीजन लिया that you will be studying CSE and not any other course, so the result of that decision is that you are here today. Here in the sense, in this particular course, studying these subjects, right? If you have taken any other decision, you have taken any other course in the past or in recent past, the result would have been seen in the current things, in the current activities of yours. So in the same fashion, जो भी हम फ्यूचर के डिसीजंस आज लेंगे वो हमें फ्यूचर में उसका लॉस प्रॉफिट व्हाटएवर जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो फ्यूचर एक्टिविटीज़ हमारा डिफाइन करेगा. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल मेकिंग एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, व्हाइल मेकिंग एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन that it is going to impact us in the long run. तो हम बेस्टेस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल विद अस चूज करें, और अगर बहुत नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, सो वॉट एवर प्रोजेक्ट वी हैव वी शुड डू इट प्रॉपर एनालिसिस सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी को हम मैक्सिमाइज करने का उसमें सोचें कि कैसे कर सकते हैं बिफोर वी गो फॉर एनी प्रोजेक्ट, एंड रिस्क को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें. ठीक है. सेकेंड इम्पोर्टेंस इज दैट इट इज़ इरिवर्सिबल. Once the investment is done, there is no point of bringing back that money, invested money, back to the business. We cannot bring that money back. Once it is out, it is invested, it is gone. तो अगर वो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं हुआ या रैशनली डिसीजन लेकर नहीं हुआ, तो फिर वो जो लॉस जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर टोटल लॉस ही हो जाएगा. उस कैपिटल को हम कहीं और यूज करके में भी कुछ और बेटर इन्वेस्टमेंट करके हम उससे कुछ रिटर्न्स या प्रॉफिट्स अर्न कर सकते थे. So whenever we are making any decision, it is very important to consider that whatever we are making the money, we will not be getting it back, and we have to earn through this particular option only in which we are investing. जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी में हमको इन्वेस्टमेंट से अर्न करना है. या तो हम इन्वेस्टमेंट से पहले सोचें कि हमें नहीं करना है, लेकिन अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, then we will not be able to get back. For example, if you buy any product in real life also, if you buy any product, we cannot go back to the store and return that particular product. मुझे नहीं चाहिए एक दिन पे, चाहे वो एक दिन के बाद ही हो, चाहे वो एक घंटे के बाद ही हो. Once the product is sold to you, it is yours, and the same amount you cannot get it for the same product even after 1 hour. You cannot resell it to the store. Even if you will resell it in the market, you will not be able to get the same amount. Nobody will buy the purchased device from you at the same cost, at the same price at which you have bought it. So it is, that particular nature is called irreversible. ठीक है. Substantial outlays. Capital expenditure usually involves substantial outlays. Substantial का मतलब यहाँ पर है कि heavy हम investment कर रहे हैं, heavy outlays हैं. An integrated steel plant, for example, involves an outlay of several thousand millions. मतलब अगर हम स्टील प्लांट का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें हमें मिलियंस में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अगर वो पहला ही प्रोजेक्ट है, पहला इन्वेस्टमेंट की उसके लिए बहुत बड़ा लेवल पे फैक्ट्री और समथिंग लाइक दैट शुड बी स्टार्टेड. और अगर वो फर्स्ट हमारा आउटले नहीं भी है, इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, और रनिंग बिजनेस भी है, तो भी बहुत हाई लेवल पर आउटलेज होते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज गोइंग टू बी फॉर लॉन्ग टर्म. Just give me a minute. Shivani has some issue.
सो सब्सटैंशियल आउटलेज होते हैं. आउटलेज का मतलब यहाँ पर है द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट वी आर मेकिंग, द अमाउंट व्हिच वी आर गिविंग आउट फॉर द इन्वेस्टमेंट made in the first place is substantial, is outlay. Basically substantial outlay इसमें होता है. These includes the importance. तो importance में इसमें कुछ आपको query है किसी को तो बताइए. Then we will move next. Now the difficulties. अब investment decisions हम एक काम बहुत important जैसे हमने बोला कि financial manager या finance manager का है, तो उस particular काम को करने के लिए difficulties क्या क्या आ रही हैं, difficulties क्या हो सकती हैं और क्यों हैं, वो difficulties हम पढ़ रहे हैं. हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि इन difficulties को हम control कर पाएं, और अगर हमारे अंडर कंट्रोल रहेंगी तो मे बी देन द डिसीजंस may be beneficial in the better way. Otherwise there are certain difficulties which cannot be overcome and which we think and consider while opting any project कि हाँ कुछ ऐसी मतलब problems हैं ही या कुछ ऐसी difficulties हैं जिनको हम ignore नहीं कर सकते. इग्नोर नहीं कर सकते का मतलब हमें वी विल हैव टू गो फॉर आवर वर्क, और वी विल हैव टू कंटिन्यू आवर वट एवर प्रोजेक्ट वी हैव टू फाइनलाइज, या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट को हमें करना ही पड़ेगा, कंसिडरिंग कि ये डिफिकल्टीज तो रहेंगी या ये पर्टिकुलर लॉस तो रहेगा ही रहेगा, या हो सकता है फ्यूचर में हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. सो सम ऑफ देम आर there are three difficulties we consider in investment decisions. When the capital expenditure मतलब long term investment decisions are, these are very important, and when these are taken they also pose difficulties. Whenever they are taken, obviously difficulties हर चीज़ में ही आएंगी. आप कहीं पर भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे पास हमेशा ये चीज़ का डाउट रहता ही है कि ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा फ्यूचर में, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा परफॉर्म हो पाएगा, क्या हम ही वैसा परफॉर्म कर पाएंगे जिस लेवल का हमने सोचा है या टारगेट करा है. सो दिस विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम, बट बिकॉज ऑफ दीज डिफिकल्टीज इट डजंट अप्लाई कि हम काम करने जो है, या बिकॉज ऑफ सम रिस्क्स हम कोई डिसीजन ही नहीं लें या हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ही नहीं करें. सो कंसीडरिंग की रिस्क थोड़ा बहुत तो रहता ही है. और जब भी कभी हम किसी लॉन्ग रन की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फ्यूचर इज नॉट इन आवर हैंड्स एंड इट इज ऑलवेज अनसर्टेन. तो अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बिजनेसमैन हमेशा लेकर चलते हैं कि फ्यूचर में किसी को भी कभी भी किसी भी वजह से थोड़ा लॉस हो सकता है, तो उतने लॉस का मार्जिन हर कोई लेकर भी चलता है. सो दोज डिफिकल्टीज व्हाट अ फाइनेंस मैनेजर फेसेस are these measurement problems. सबसे पहला प्रॉब्लम जिसको इन्वेस्टमेंट अगर करना है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ फाइनेंस मैनेजर और यू टेक योरसेल्फ एज अ फाइनेंस मैनेजर इन बिजनेस, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी करें हम. प्रॉब्लम मेजर करने का भी आता है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें एंड एट व्हाट पॉइंट इन टाइम, आज कितनी करें, या 1 मंथ के बाद अगर हम इसमें करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्या, या क्या हम 1 मंथ पहले कर चुके होते तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट था, हमने पहले 1 मंथ पहले अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हमें बेनिफिट है तो हमने पहले क्यों नहीं एनालाइज किया, ये सब हमारा फेलियर है. मतलब दीज ऑल थिंग्स मेजर करना इज वन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ये सूरज, एनी इशू बेटा? मैम उदय एंट्री नहीं हो पा रहा मैम, एक बार देख लेना. उधर नहीं एंटर. हाँ बेटा, मुझे ना शिवानी का भी मैसेज आया था, तो दे आर आल्सो नॉट एबल टू जॉइन. आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट आई विल. वो लिंक ओपन नहीं हो रहा, और जो पर्सनल अगर आईडी से लॉगिन करो तो सोलो आ रहे हैं, मतलब सिंगल बंदे आ रहे हैं, वो सिर्फ वही है और कोई नहीं है. तो वो क्या लेक्चर ले पा रहे हैं? लेक्चर ले पा रहे हैं वो जो सिंगल में भी दिख रहे हैं? बेटा मुझे मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा सूरज, ये इशू ना कि जूम में सबको प्रॉब्लम आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू यूज गूगल मीट, आई एम नॉट ऑथराइज्ड येट टू यूज दैट. तो मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी. आई हैव अ मीटिंग टुडे विद द मैनेजमेंट. मैं बात कर लेती हूँ आज में, ये अपना प्रॉब्लम मैं रख दूंगी सो दैट आई कैन ऑल्सो यूज गूगल मीट लाइक द अदर फैकल्टी पीपल विद यू गाइज. और ये प्रॉब्लम ना, किसने बोला है आपको? भी नाम बताइए दोबारा जो इशू आ रहा है.
मेरे को सिर्फ उदय ने मैसेज करा कि कुछ नहीं हो रहा, वो ना वो आईडी से एंटर करो तो सिर्फ वही रूम में आ रहा, मतलब वो अकेला रूम में है, बाकी कोई नहीं है। नहीं, आईडी से नहीं एंटर और करने से होगा, वो लिंक पर क्लिक करने से होगा। आई डोंट नो लिंक क्यों नहीं क्लिक कर पा लिंक रहे हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे नहीं लिंक कर से पा रहे नहीं हैं। हो रहा मैम, लिंक वो कह रहा है कि लिंक से एरर दिखा रहा है उसको कोई। मैं उसको दोबारा लिंक भेजने की कोशिश करूं तो सभी का टाइम भी अभी वेस्ट होगा। मैं बार उधर से बार मैम बात कर फिर लूंगी। एग्जिट होना पड़ेगा। हाँ, सबको एग्जिट होना पड़ेगा। नहीं, आप रहने दीजिए, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। मैं उधर से इन पर्सन बात कर लूंगी, और लेक्चर्स में यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो ये लेक्चर्स सभी वहाँ से आप सब भी देख सकते हैं बाद में भी, और जो मिस कर जाएंगे वो भी वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग 16-17 पीपल हैं, सभी का टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उदय से बाद में बात कर लेती हूँ। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आप उनको मैसेज कर दीजिए कि मैम विल स्पीक टू यू, या वो मुझे टेक्स्ट कर दें। ओके उदय मैम। उदय ठीक है, उदय मुझे टेक्स्ट कर दें, सो आई विल स्पीक टू ओके यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग नाउ। पहला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि उसको, उसके पास ये चैलेंज रहता है, डिफिकल्टीज मतलब चैलेंज, प्रॉब्लम ये है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करे, क्या कॉस्ट होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना उसको बहुत ज़्यादा एक चैलेंज उसके लिए रहता है कि वॉट एवर कॉस्ट ही इज इन्वेस्टिंग टुडे विल बी बेनिफिशियल टुमारो, और आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years। बहुत सारी चीज़ें, टाइम एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी एनालिसिस करना पड़ता है कि जो हम आज कर रहे हैं कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम के साथ वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इतना कम तो नहीं हो जाएगा कि हमारा बिल्कुल लॉस में आने लग जाए, कि हम शुरू के 2-3 साल प्रॉफिट अर्न करें, बाद में लॉस हो जाए। सो दीज आर ऑल मेजरिंग प्रॉब्लम्स कि कितना, कब, किस टाइम पीरियड पे हम करें। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, एक बार में आउटले सारा चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक बार में सारी चली जाएगी। जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने घर के लिए हमने कोई एसी खरीदा है, तो हम, ऐसा तो नहीं है, अब हम उतना एनालिसिस नहीं करते पर्सनल चीज़ों के लिए हम, क्योंकि हम एट टाइम्स विश भी इन्वॉल्व होती है हमारी, हमारा शौक है कुछ खरीदना तो हमने वो खरीद लिया, हम उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस